Bismillahirrahmanirrahim. Last second year, we have been reading our section 2.1 since the last two lectures. Today I am going to complete the reading of this lesson. So far we have discussed in detail the speech of Martin Luther King Jr. and its background. We have also discussed the racial discrimination in American society and the discontentment of the Negro people. In my first lecture, I gave you a detailed description and history of racial discrimination in American society. Then a reference was also given of Emancipation Proclamation, a treaty which was signed by 16th American President Abraham Lincoln. And in this speech of Martin Luther King Jr., we have so far discussed the discontentment of the American people, and then the role of Martin Luther King Jr. He provoked them, he gave them motivation, and moreover, he guided them to remain unviolent in this particular movement. Today I am going to start from where we left in the previous lecture. Before that, I think I missed few lines in the last lecture. I am going to read them now. These 2 or 3 lines were missed, and I am glad that our students listen it very carefully, and one of the students told me that, sir, these 2 lines are missing. These lines were, we can never be satisfied. These 2 lines were left. We can never be satisfied as long as our bodies heavy with the fatigue of travel. हम उस वक्त तक मुतमईन नहीं हो सकते जब तक हमारे जिस्म थक ना जाए, फटीग ना हो जाए, टायर्ड ना हो जाए। किस चीज़ से? ट्रैवलिंग से। ये जो हमारा सफ़र है आज़ादी की तरफ, इससे। कैन नॉट गेन लॉजिंग। लॉजिंग कहते हैं किसी जगह रिहाइश इख्तियार करना, रुकना, किसी जगह कोई मंजिल अपनी पा लेना, रिहाइश का की सेंस में आता है लॉजिंग, लिविंग प्लेस। इन द होटल्स ऑफ द हाईवेज एंड द होटल्स ऑफ द सिटीज। होटल्स जो होते हैं वो हाईवेज के रास्ते में होते हैं, रेस्ट प्लेस, यहाँ लोग स्टे भी कर सकते हैं। तो हाईवेज या बड़ी बड़ी सड़कों के रास्ते में जो खाने पीने की जगह, रिहाइश की जगह होती हैं, वो मोटेल्स होते हैं, और जो बड़े शहरों में ये जगह हैं, ये होटल्स कहलाती हैं। कहता है कि उस वक्त तक हम ना इन शाहराहों के रास्ते में रुक सकते हैं, ना शहरों में रिहाइश हासिल कर सकते हैं, जब तक हम थक नहीं जाते। तो these 2 lines were left. Now come to today's lecture. I say to you today, my friends, that in spite of the difficulties and frustrations of the moment, अब अपने वो जो एक टाइटल था, I have a dream, उसकी तरफ आ रहे हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर। क्या कहते हैं कि in spite of difficulties and frustrations of the moment, इस वक्त difficulties भी हैं, इस वक्त frustrations भी हैं, इस वक्त हम मायूस हैं, मसाइल का शिकार है, लेकिन इन तमाम के बावजूद, in spite of that, I still have a dream. मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी है, मेरा अभी भी एक ख्वाब है। It is a dream deeply rooted in the American dream. और ये सिर्फ मेरा ख्वाब नहीं है, ये ख्वाब ऐसा है जिसकी जड़ें मुंसलिक हैं, जो जुड़ा हुआ है अमेरिका के ख्वाब के साथ।
I have a dream that one day this nation will rise up. What is this dream? That this nation will stand up, rise up, and live out the true meanings of its creed. Creed कहते हैं अकीदा, a system, a statement or system of belief. A system of belief that is called creed. कि ये कौम एक दिन खड़ी हो जाएगी और जो इसका असल अकीदा है, जो असल सिस्टम ऑफ बिलीव्स है, उसके मुताबिक ये अपनी जिंदगी गुजारेगी. We hold these truths to be self-evident, very apparent, वाज़े, clear. क्या कहते हैं जी? कि हम समझते हैं, we hold, हम समझते हैं कि ये सच्चाई बहुत क्लियर है, बहुत वाज़े है, बहुत एविडेंट है. क्या जी? That all men are created equal, कि तमाम इंसान बराबर पैदा किए गए हैं. यानी ये वाज़े बात है कि तमाम इंसान बराबर हैं. I have a dream that one day on the red hills of Georgia. Sorry students, due to load shedding I have to stop my lecture. I am restarting it again. I have a dream today. I have dreamed that one day the red hills of Georgia, कि जो जॉर्जिया की रेड हिल्स हैं, वहां पे क्या होगा जी? द सन्स ऑफ फॉर्मर स्लेव्स, जो वहां के साबका गुलाम हैं, फॉर्मर साबका, एंड द सन्स ऑफ फॉर्मर स्लेव्स ओनर, और जो उनके साबका मालिक हैं, will be able to sit together on at the table of brotherhood. वो सारे वहाँ इकट्ठे बैठेंगे भाईचारे की मेज पर, ब्रदरहुड की टेबल पर. I have a dream that one day even the state of Mississippi, मेरा एक ख्वाब है कि एक दिन आएगा कि हत्ता के मिसिसिपी की रियासत भी, a desert state, जो हमारे लिए इस वक्त एक सहरा की मानत है, desert state है, यानी वहाँ पे ज़्यादा जुल्म से कम है. Sweltering, कल भी ये लफ्ज़ गुजरा था, burned है, जो दहक रही है. Sweltering with the heat of injustice, नाइंसाफी की आग से दहक रही है ये स्टेट. And oppression, और वहाँ cruelty है, जुल्म है, will be transformed into anosis. ये भी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, ये भी चेंज हो जाएगी, तब्दील हो जाएगी. किसमें जी? Anosis. Oasis is a place in the desert area where greenery is present, where water is present. That is called oasis, नेखलिस्तान. Into an oasis of freedom and justice. तो वो दहकती हुई सहराई रियासत भी जुल्म और तशद्दुद की वजह से एक नेखलिस्तान में बदल जाएगी आज़ादी और इंसाफ के. I have dreamed that my 4 little children will one day live in a nation. मेरा ख्वाब है कि मेरे 4 बच्चे एक ऐसी कौम, ऐसे मुल्क में जिंदगी गुजारेंगे where they will not be judged by the color of their skin, जहां उन्हें रंग से नहीं जांचा जाएगा, but by the content of their character, बल्कि उनकी किरदार की अजमत से, कंटेंट ऑफ कैरेक्टर, यानी जैसा किरदार है उनका, उससे जांचा जाएगा. I have a dream today. बार बार repetition आ रही है, I have a dream today. I have a dream that one day the state of Alabama, ये कोई और रियासत है जी, कि अलाबामा की रियासत भी, whose governors lips, जहाँ का जो गवर्नर है इस वक्त हमारा शदीद मुखालिफ है, उसके होंठों पर है presently dripping with, dripping किस चीज का? टपकना, जिसके होंठों से टपक रही है क्या चीज जी? हमारे लिए कौन से अल्फाज? विद द वर्ड्स ऑफ इंटरपोजिशन एंड नलिफिकेशन. नलिफिकेशन कहते हैं एबॉलिश कर देना किसी चीज को, रिमाइंडिंग समथिंग इनइफेक्टिव, कि ये इनइफेक्टिव है, ये एबॉलिश है, मनसूख है, खत्म कर दिया जाता है. इंटरपोजिशन कहते हैं मुदाखलत करना, इंटरवीन करना, इंटरवेंशन करना. तो जिसके गवर्नर के होंठों पर अभी तक एतराज है, मुदाखलत करता है वो हमारे मामलों पे, और हमें नलीफाई कर रहा है, हमें
वो रिजेक्ट कर रहा है, मनसूख कर रहा है, अबॉलिश कर रहा है, कहता हमारी कोई बात मानने को तैयार नहीं है, will be transformed into a situation, लेकिन वहां भी जगह, वहां भी सूरत हाल बदलेगी और ऐसी सूरत हाल आएगी where the little black boys and black girls, जहां छोटे छोटे स्याह फाम बच्चे और बच्चियां will be able to join hands with the little white boys and white girls, वो सफेद फाम बच्चे और बच्चियों के साथ हाथ में हाथ मिलाएंगे and walk together as sisters and brothers, और इकट्ठे सफर तय करेंगे एक नेशन के तौर पर, बहन भाइयों के तौर पर। फिर इसकी ट्रांसलेशन को सुन लें पूरी को, कि मेरा ख्वाब है कि एक दिन अलबामा की रियासत जिसके गवर्नर के होंठों पर अब भी एतराज है और तनसीख मनसूख करने के अल्फाज हैं, वहां ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी जहां छोटे स्याह फाम लड़के और लड़कियां छोटे सफेद फाम लड़कों और लड़कियों के साथ हाथ में हाथ डाले बहन भाइयों की तरह इकट्ठे चलेंगे। I have a dream that one day every valley shall be exalted. वादी, वैली, exalted क्या होता है? किसी चीज का बुलंद हो जाना। कि मेरा ख्वाब है कि जो हर वादी है वो बुलंद व बाला हो जाएगी, नीचे वाली जगह ऊपर हो जाएगी। Exalted, बुलंद व बाला हो जाना। Every hill and mountain shall be made low. लेकिन जितने पहाड़ हैं, जितनी ऊंची जगह हैं, माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, वो नीची हो जाएंगी, यानी बराबरी पे आ जाएंगे, नीची जगह ऊपर, ऊपरी जगह नीचे, सब बराबर हो जाएंगे। The rough places will be made plain, ना हमवार रास्ते हमवार हो जाएंगे। And the crooked places not straight, crooked कहते हैं not straight, जो सीधा ना हो, टेढ़ा। And the crooked places will be made straight, और टेढ़े रास्तों को सीधा कर दिया जाएगा। And the glory of the Lord shall be revealed, और खुदा की अज़मत जाहिर होके रहेगी। And all flesh shall see it together, flesh, human beings, और तमाम इंसान, तमाम human beings, तमाम लोग, तमाम people इसको इकट्ठा देखेंगे। This is our hope, ये हमारी उम्मीद है। This is the faith with which I return to the south, इस उम्मीद के साथ मैं जनूब की तरफ जाता हूँ। With this faith we will be able to hew out वो कहते हैं कट कर देना, काट देना किसी चीज को। ये वो ईमान है जिसकी बदौलत हम काट पाएंगे, hew out कर पाएंगे the mountain of despair, किस चीज को काटेंगे जी? मायूसी के पहाड़ को, mountain of despair, hopelessness के mountain को, a stone of hope, उस पहाड़ को काट के हम उम्मीद का एक पत्थर बना देंगे, यानी इस मायूसी से ही हम उम्मीद पैदा करेंगे। With this faith we will be able to transform, ये वो ईमान है जिससे हम तब्दील कर देंगे jangling discords of our nation, jangling बेसुरे, harsh और unpleasant, म्यूजिकल टर्म अब इस्तेमाल हो रही है, harsh और unpleasant साउंड को कहते हैं jangling, बेसुरे। Transform the jangling discords of our nation, discord सुर, जो बेसुरे किस्म के गीत हैं, धुने हैं, सुर हैं हमारे कौम के, उससे हम इसको किस बदल देंगे? Into a beautiful symphony of brotherhood, symphony, ये भी एक सुर की सेंस में आता है, धुन की सेंस में आता है, symphony, symphony of brotherhood, तो हम इसको एक भाईचारे की धुन में बदल देंगे। With this faith we will be able to work together, इसी ईमान के साथ हम इकट्ठे काम करेंगे। To pray together, हमारी इबादत इकट्ठी होंगी। To struggle together, इकट्ठे हम मेहनत करेंगे। To go to jail together, अगर जेल जाना पड़ता है तो साथ जाएंगे। To stand up for freedom together, लेकिन अपनी आज़ादी के लिए हम सारे मिल के साथ खड़े होंगे। Knowing that we will be free one day, ये यकीन, ये ईमान कि हम एक दिन आज़ाद होंगे। This will be the day when all God's children will be able to sing with new meanings. वो दिन होगा जब खुदा की तमाम मखलूक एक नया गीत गाएगी,
एक नए मफ़हूम के साथ ये गीत गाएगी। कौन सा गीत जी? माई कंट्री ऑफ दी, ये मेरा मुल्क है, ये तुम्हारा भी है। स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी, ये मेरी आज़ादी की खूबसूरत सरजमीन है, मीठी सरजमीन है। ऑफ दी, टी यू, ऑफ दी आई सिंग, ऐ वतन तुम्हारे लिए मैं गीत गाता हूँ। लैंड वेयर माई फादर्स डाइड, ये वो ज़मीन है जहाँ मेरे अबाव-ओ-अजदाद का इंतकाल हुआ। लैंड ऑफ पिलग्रिम्स प्राइड, वो लोग जो मुकद्दस सफ़र करते हैं, मुकद्दस सफ़र करने वाले लोगों के लिए ये फ़ख्र का बायस है, ज़ायरीन के लिए, होली ट्रैवलर्स के लिए ये जो है फ़ख्र का बायस है। फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड लेट फ्रीडम रिंग, हर पहाड़ी इलाके से आज़ादी का गीत बजने दो, आज़ादी का शोर आने दो। एंड इफ अमेरिका इज टू बी ए ग्रेट नेशन, और अगर अमेरिका को एक अजीम कौम बनना है, मुल्क बनना है, दिस मस्ट बिकम ट्रू, तो जो मैंने कहा उसे सच साबित होना है। सो लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द प्रोडिजियस हिल टॉप्स ऑफ न्यू हैम्पशायर। तो इस आज़ादी का जो गीत है, ये कहाँ से इसकी आवाज़ आनी चाहिए, हम पूरे मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों को गिनवाएंगे। तो सबसे पहले कहाँ से जी? प्रोडिजियस, माइटी, अजीम हिल टॉप्स ऑफ न्यू हैम्पशायर। हैम्पशायर के जो हिल टॉप्स हैं, पहाड़ी सिलसिले हैं, अजीम पहाड़ हैं, वहां से इस आज़ादी का गीत सुनाई देना चाहिए। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द माइटी माउंटेन्स ऑफ न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क के जो अजीम पहाड़ हैं, माइटी माउंटेन्स हैं, वहां से भी ये आवाज आनी चाहिए। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द हाइटिंग एलिगेंसीज ऑफ पेनिसिल्वेनिया, ये पेनिसिल्वेनिया का एक पहाड़ी सिलसिला है, एलिगेंसी, ये कैपिटल लिखा है, ये प्रॉपर नाम है। तो ये जो पेनिसिल्वेनिया की एलिगेंसीज हैं, वहां से भी इस आज़ादी का गीत बजना चाहिए। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्नो कैप रॉकीज ऑफ कोलोराडो, और कोलोराडो की जो बर्फपोश चोटियां हैं, वहां से भी इस गीत की आवाज आनी चाहिए। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द कर्विशियस पीक्स ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया की जो पुरपेच चोटियां हैं, कर्विशियस, टेढ़ी मेढ़ी कर्व है जिनमें, कर्विशियस पीक्स हैं, वहां से भी इस आवाज को आना चाहिए। बट नॉट ओनली दैट, but that is not enough. He's saying that it is not enough. Let freedom ring from Stone Mountain of Georgia. Again देखें, Stone Mountain S और M कैपिटल है, प्रॉपर नाउन है, नाम है। जॉर्जिया का जो Stone Mountain है, वहां से भी इस आवाज को आना है। Let freedom ring from the Lookout Mountain of Tennessee. फिर प्रॉपर नाउन, जो Lookout Mountain है टेनेसी का, वहां से भी इस आवाज को सुनाई देना चाहिए। Let freedom ring from every hill and molehill. हर पहाड़ से, हर टीले से इस आज़ादी का शोर सुनाना देने चाहिए मिसिसिपी के। फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड लेट फ्रीडम रिंग, हमारे मुल्क के जितने पहाड़ी सिलसिले हैं, सबसे इस आवाज़ को, इस आज़ादी के शोर को सुनाई देना चाहिए, इस गीत को बजना चाहिए हर तरफ से। When we let freedom ring, जब ये शोर हर तरफ फैलेगा, जब आज़ादी का गीत हर तरफ गूंजेगा, when we let it ring from every village and every hamlet, उस अजीम पहाड़ों से शुरू होकर जब ये हर गांव और हर छोटे से कस्बे, हैमलेट छोटा सा कस्बा, यहां तक आएगा, from every state and every city, और फिर हर रियासत तक जाएगा, अमेरिका के हर शहर तक जाएगा, we will be able to speed up that day, तो वो दिन बहुत जल्द आएगा फिर, when all of God's children, जब खुदा की तमाम मखलूक, ब्लैक मैन एंड वाइट मैन, चाहे वो गोरे हैं या काले हैं, ज्यूज एंड जेंटाइल्स, चाहे वो यहूदी हैं या ईसाई हैं, प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथोलिक्स, ईसाइयों के फिर दो बड़े फिरके हैं मजहब के, प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक्स, चाहे वो प्रोटेस्टेंट से ताल्लुक रखते हैं चाहे कैथोलिक से ताल्लुक रखते हैं, will be able to join hands and sing in the words of the old Nagu spiritual. वो सारे के सारे हाथ में हाथ देंगे, हाथ में हाथ मिलाएंगे और उस ओल्ड नीग्रो स्पिरिचुअल का गीत गाएंगे। अच्छा, ये जो नीग्रो स्पिरिचुअल है, ये टर्म है कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि शुरू से इनको स्लेव बनाया गया था, अफ्रीकन अमेरिकन को, 300-400 साल की हिस्ट्री है इनकी स्लेव्स की।
तो ये अपनी तस्कीन के लिए, अपनी तसल्ली के लिए म्यूजिक का सहारा लिया करते थे। तो उनके जो फिर गीत थे वो नस्ल दर नस्ल आगे ट्रांसफर होते गए और एक टर्म की सेंस में आते गए, यानी ओल्ड नीग्रो स्पिरिचुअल के गीत। वो जो नस्ल दर नस्ल गीत चलते थे जो उनको सहारा देते थे पिछले 300-400 साल के मुश्किल टाइम में, वो एक टर्म बन गई ओल्ड नीग्रो स्पिरिचुअल की। तो यहाँ पे वही बात कर रहा है कि हम फिर उस ओल्ड नीग्रो स्पिरिचुअल का वो जो पुराना गीत है वो गाएंगे रूहानी बुजुर्ग का। क्या जी? फ्री एट लास्ट, फ्री एट लास्ट, आजाद हो गया आखिरकार हम। थैंक गॉड ऑलमाइटी वी आर फ्री एट लास्ट। खुदा का शुक्र कि हम सारे आजाद हो गए। That's all students. I have completed the reading of this lesson. In next 2 to 3 lectures we will do the exercise, and after Eid inshallah we will start our next lesson. In next 3 lessons I will do the exercise, then there will be break of 8 to 10 days for Eid, and after Eid I will start next lesson. Routine will be the same. You must send me the key points of this chapter and also the words meaning, and in our next lecture I will start exercise. Thank you students.